हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेट 3 हमारे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के एग्जाम का। तो जितने भी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स होते हैं सबके लिए ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने सेट 2 और सेट 1 नहीं देखा है तो दीज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय चैनल। आप चैनल विजिट करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको 2 सेट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। नाउ सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 200। नाउ देखिए, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के केस में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट इज 200 एंड मैक्सिमम मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज नो लिमिट। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेशियो indicates the proportion of total assets financed by shareholders. Try करें आप इसको। So the correct answer to this question is proprietary ratio. Now interest coverage ratio का देखते हैं हम। The formula is EBIT divided by interest expense. Stock turnover ratio का cost of goods sold by average inventory and debt service coverage ratio का net operating income divided by debt service. So interest coverage ratio होता क्या है? It refers to how many times the company is payable to pay its obligation. ठीक है, मतलब higher the IC interest coverage ratio, the more the firm has the ability to pay its debt. ठीक है, now stock turnover ratio, it is also stock turnover ratio. The higher the ratio, the better it is. Debt to debt service coverage ratio का भी the higher the better. ठीक है, now next question, what is the maximum age of the presiding officer of the tribunal under EPF Act, the BPFO Act? So the correct answer to this question is 62 years. Now next question देखते हैं. In order to convert a promise into a proposal into a promise, the acceptance must be, I hope आपने try किया होगा. So the correct answer is the proposal must be absolute. Now next question is, what is the quorum to conduct meeting as per the Companies Act 2013? So the correct answer is 1/3 of the total director. Also कुछ conditions और होती हैं, either it is 1/3 जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया मैंने, either it is 1/3 और 2 directors. ठीक है, whichever is higher, either 1/3 का अमाउंट और 2 directors, whichever is higher. Also एक फैक्ट बताता हूँ आपको, maximum number of director in a company is 15. ठीक है, now next question. Section 10C of the Income Tax Act 1961 provides for special provision in respect of certain industrial undertaking in which region? So the correct answer is Northeast. Now next question. Internal audit should not be rendered by an auditor under which section of the Companies Act? Companies Act 2013. Now the correct answer is section 144 के अंदर में internal audit should not be rendered. Also section 141 and 142 provide it is related to auditor only. ठीक है, and section 143 is related to powers and duties of auditor. Okay, now next question is, corporate wheel theory refers to identity of a company identical with members, identity of company separate from its members, company and its members are interrelated, yeah, none of the above option is correct. Now the correct answer to this question is identity of a company is separate from its members. Now next question, the headquarters of National Financing Reporting Authority is in. So the correct option is New Delhi. New Delhi में इसका headquarter है. Now next question, which of the following is not a technique of verification?
आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को. सो द करेक्ट आंसर इज बियॉन्ड बजटिंग. दीज आर नॉट a technique of verification, whereas confirmation, observation and inspection, these are techniques of verification. Now next question is, cost audit is mentioned in which section? Important question है, ध्यान रखना आप इसको. ठीक है. So the correct answer is cost audit is mentioned in section 148, whereas section 142 में remuneration of audit, section 145 में signing of audit report, and section 139 में appointment of auditor is mentioned. This is also very important. ध्यान रखना आप इसको. Which of the following is not a part of inventory? So inventory का इनमें से कौन सा part नहीं है? So the correct answer to this question is spare part of machinery does not constitute a part of inventory. ठीक है. Machinery हमें पता है is fixed asset. ठीक है. And inventory is a current asset. ठीक है. Finished जो goods होता है हमारे, those are for purpose of doing business. Raw material used to make finished goods and work in progress. ठीक है. ये तीनों these are related to current assets and inventory is also current assets. So आप ऐसे भी relate कर सकते हैं इसको. Now, which decisions are also called capital budgeting decisions? Now the correct answer to this is investment. इसको आप लॉजिक से भी कर सकते हैं. कैपिटल मीन्स व्हाट? द मनी यू नीड टू रन योर बिजनेस, है ना. मनी किधर से आएगा? तो इन्वेस्टमेंट किधर से होगी? सिंपली रिलेट होता है ये. डिविडेंड डिसीजंस आर दोज की हाउ मच मनी और हाउ मच डिविडेंड यू हैव टू पे टू योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. फाइनेंसिंग डिसीजंस मीन्स इक्विटी में फाइनेंस होगा, डेट में फाइनेंस होगा. एंड रेवेन्यू डिसीजंस इज हाउ टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनीज. प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है. तो these all are the options. Now next question, return on assets divided by investment is called which ratio? Now the correct answer is return on capital employed ratio. अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट इनकम बाय माइनस प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड देते हैं हम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू. एंड रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या बोलते हैं? दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. तो ध्यान रखना आप इसको. Now next question is, which ratio measures the operational efficiency of firm? Operational efficiency कौन सा रेशियो तय करता है? So the correct answer is working capital ratio. Liquidity ratio में पता है current ratio, quick ratio, these all are liquidity ratio. कि how much speedily you can convert your assets into cash. Liquidity means that. Profitability ratio मतलब कि how much your company is earning. डिफरेंट इसमें रेशियोज होते हैं, जैसे ईपीएस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो. ठीक है. दीज ऑल आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दीज ऑल आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. कैपिटल स्ट्रक्चर कि आपकी कंपनी का कैपिटल कैसा होगा, डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा. सो डेट टू इक्विटी रेशियो एटसेट्रा, दीज आर एग्जांपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The term fixed assets includes except, मतलब कौन सा इनमें से इंक्लूड नहीं किया जाता है हमारे फिक्स्ड एसेट्स में. ठीक है. इजी वन, इन्वेंट्रीज. अभी पहले मैंने बताया कंसेप्ट में कि इन्वेंट्रीज आर करंट एसेट्स. ठीक है. करंट में हम इनको ट्रेड करके एंड वी अर्न मनी. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. ठीक है. विच इज लॉन्ग टर्म. प्लांट एंड मशीनरी ऑफ कोर्स इज अ फिक्स्ड एसेट. पेटेंट्स also are intangible assets that are fixed. Okay. Now next question, when an error is committed in recording a transaction with wrong amount or posting to wrong side of the account, it is called. तो I hope आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा. So the correct answer to this is error of commission. Now error of omission क्या होता है कि मतलब आपने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया. ठीक है. Though the transaction has occurred, ठीक है,
but you failed to record. No entry has been recorded. No entry recorded. These are the error of omission. Now compensating error क्या होता है कि although entries had been made, ठीक है, entries जो है उनको हमने रजिस्टर किया है, बट द अकाउंट्स आर डिफरेंट, ठीक है, मतलब इधर का उधर कर दिया, ए का बी में डाल दिया, बी का ए में डाल दिया, ठीक है। एट द एंड रिजल्ट क्या होगा कि बैलेंस शीट विल बी मैच्ड, बैलेंस शीट आपकी मैच करेगी, बट अकाउंट्स गलत हो गए। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या हो गए कि दीज आर बेसिक अकाउंटिंग मिस्टेक्स, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मिस्टेक होती है, जैसे कुछ डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, एंड दीज टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स आर एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ओके, now next question, maximum period for which an individual can be appointed as an auditor of a company. So the correct answer is 5, ठीक है, and also appointment of auditor is mentioned in article 1 section 139. Okay, now next question, gross working capital refers to, so the correct answer is total current asset. अभी मैंने बताया working capital is that which you need to run your business, तो liability का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, these liability you have to pay in future. फ्यूचर में जो लाइबिलिटी पे करनी है उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं, एंड जो लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म में पे करनी है उसको करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज टोटल करंट एसेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 126 of the Indian Contract Act refers to, now section 126 refers to कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बेलमेंट का कौन सा था, बेलमेंट का 148 था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी कितना था 124, एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज मेंशन्ड इन 2 सबसेक्शन जे, ठीक है, एक बार याद कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 126, बेलमेंट इन 148, इंडेमनिटी इन 124, एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन 2J। इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान रखना इसको। Now, who is the chairman of the monetary policy committee? So monetary policy committee कौन बनाता है? First of all ये RBI बनाता है, ठीक है, तो monetary policy committee का चेयरमैन कौन है? So the correct answer is governor of RBI, finance minister, answer confuse मत करना, ठीक है, finance minister लीड नहीं करते, monetary policy is headed by monetary policy is headed by RBI governor, ठीक है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंट स्टैंसेस होते हैं, CRR, SLR, रेपो, ठीक है, रिवर्स रेपो, और आजकल एक न्यूज में है काफी ज्यादा SDF है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आरबीआई decides the rates of SDF, standing deposit facility. Now next question is, GST Council is established as per which article of the Constitution? GST Council कौन से आर्टिकल से establish हुई है? So the GST Council has been established as per article 279A of the Constitution, ठीक है, किसी एक्ट के तहत नहीं है। Also ये ध्यान रखना, GST Council is a constitutional body, ठीक है, एंड GST से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखो, GST सबसे पहला फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग GST वाज फ्रांस, एंड इंडिया में 101st अमेंडमेंट एक्ट से GST इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, 101st अमेंडमेंट एक्ट से। 280 का मैं बता देता हूँ, ये जनरल नॉलेज के पोर्शन में पूछ सकता है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 112 इज फॉर बजट, ऑल्दो बजट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट की बात नहीं की गई, बट 112 इट सिंपली रिलेट्स टू बजट, ठीक है। आर्टिकल 371 इज फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, ठीक है, जैसे असम, नागालैंड, इन लोगों के लिए अलग प्रोविजंस होते हैं क्योंकि दे हैव डिफरेंट कस्टम्स, तो उनके लिए प्रोविजन होता है, ठीक है, 279 ही याद रखना। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड इंक्लूड, so correct answer to this is interest on loan are to be included, important question है, याद रखना इसको, आ सकता है ये।
अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी शुड इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is also called statement of changes in financial position. So the correct answer to this is fund flow statement. इसमें जितने भी फंड्स हैं उनका ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश बजट सिंपली रिलेट्स टू कैश, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट इनकम के रिगार्डिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज फॉर कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट इन चेंजेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, ध्यान रखना। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स स्टैंड्स फॉर, सो इसका करेक्ट आंसर है पीवी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 54B of Income Tax Act 1961 refers to capital gains on transfer of land for residential use, या capital gains on transfer of land used for agricultural purposes, या capital gains on transfer of land acquired by the government, या capital gains on transfer of commercial land। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज। आर्टिकल याद रखना 54B है सेक्शन। एंड ऑल्सो कैपिटल गेन्स के बारे में याद रखना, कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। दो तरह के कैपिटल गेन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। और कैपिटल गेन्स इज ऑलवेज, जब भी कोई गेन होगा या प्रॉफिट होगा किसी भी सामान को सेल करने में, ठीक है, देन ओनली कैपिटल गेन्स टैक्स इज इम्पोज्ड। अगर बेच दिया, 100 का खरीदा 100 में बेच दिया, तो उस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एरर इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट रेफर्स टू, सो द करेक्ट आंसर इज अनइंटेंशनल मिस्टेक को एरर बोलते हैं। बाकी ये सारी मिस्टेक्स तो प्रिंसिपल्स के मिस्टेक हैं, जैसे आपकी वजह से कोई गलती हो गई, ठीक है, अनइंटेंशनल मिस्टेक है, उसको एरर बोल सकते हैं। बाकी सारी तो एंट्री के टाइम कर दी जाती है मिस्टेक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनीज एक्ट केम टू फोर्स ऑन, तो करेक्ट आंसर इसका इजी क्वेश्चन है ये, 12 सितंबर 2013 को कंपनीज एक्ट फोर्स में आया। एंड ऑल्सो इसने रिप्लेस किया कंपनीज एक्ट 1956 को, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि बेनिफिट और लोगों तक भी पहुंच जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस। मिनिमम मैंने इसमें 100+ जितने भी मैंने 3 अभी तक सीरीज कराई है, इसमें 100+ डिटेल्स मैंने दे दी हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर 15-20 भी आ जाएं, उससे तो मुझे उम्मीद है ज्यादा आ सकती हैं, 15-20 भी आ जाएं तो आपका काफी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू देन।